Welcome on the behalf of HSBTE, Haryana State Board of Technical Education, Panchkula. Myself, Sheesh P. Bamnia, lecturer in Civil Engineering Department, Government Polytechnic, Ambala City, is going to deliver my lecture on construction materials for the third semester of Civil Engineering Department. The topic of the construction material for today is unit number 1, that is stones. First of all, before covering the curriculum syllabus, we must have to go through the topics which we have to study during the study of this particular subject. इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा उसका प्रीव्यू हम देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी द स्टोन्स to be used as a building material or construction material. Second, we have to study the bricks. सेकेंड जो हमने स्टडी करना है वो ब्रिक्स की स्टडी करनी है, यानी ईंट के बारे में पढ़ना है, ईंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और वो यूज कैसे होती हैं. थर्ड, वी हैव टू गो थ्रू द स्टडी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट. किस किस टाइप के कौन कौन से सीमेंट एज पर करिकुलम हमने पढ़ने हैं. नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी फॉर द वुड प्रोडक्ट्स. Means we have to use the timber as a construction material or the engineering material to be used as a construction material, and wood based products, timber based products. Then paints, varnishes, we have to study about the paints and varnishes. Then metals, some metals and non-metals are there. Metals or non-metals to be used as a construction material or a building material. At last, as per curriculum, we have to go through some miscellaneous type of materials such as POP, waterproofing materials. These we have to study as per curriculum of HSBTE, Haryana State Board of Technical Education, Panchkula, designed for the subject of construction material for the third semester. Now, as per this unit number 1, we have to study the stones. First of all, before going into the study, we must know about the two words by the combination of which the third semester subject known as construction material is taken. First word is construction. The first word is construction. Construction means something is to be built up. कुछ बनाना, construct करना. In case of the human beings, construction in terms of their shelter. Construction in terms of their shelter means जहां वो आदमी रह सके, human beings रह सके. Such as their houses, अपने लिए घर बनाते हैं. Public buildings such as railway stations, such as bus stand and other such buildings also. Then the word is material, means the shelter which is to be constructed by which material, यानी किस material का बना होगा. We are studying this. So within the curriculum subject we will study about this. Hence the materials which are to be used for the construction of a building
or the engineering structures such as civil engineering structures, then those materials are to be known as construction materials. उनको हम बोलते हैं construction materials. Under this, the first topic is stones. Now stone is a piece or block. Stone is a piece or block which is a basic material from rocks. यानी चट्टानों से हमें जो नेचुरल फॉर्म में मटेरियल मिल रहा है, जिसको हम रॉक मटेरियल बोलते हैं, दैट इज टू बी नोन एज स्टोन्स. स्टोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, यानी हमें स्टोन कहां से मिलते हैं? फ्रॉम द crest of the earth. This is outermost part of the earth's surface is to be known as crust, and crust is from the top of the earth towards the center of the earth. It is the material which is derived from top up to 20 kilometer or 100 kilometers inside the earth. It means कि क्रस्ट का वो ऊपर से लेकर के कोर की तरफ जब हम जा रहे हैं, यानी 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक हमें कुछ मटेरियल्स, कुछ मिनरल्स मिलते हैं. उन मिनरल्स को हम जब वो रॉक फॉर्म में हमें मिलेंगे, देन दे आर टू बी टर्म्ड एज द स्टोन्स. जो सबसे पुरानी कंस्ट्रक्शन जो हमारी मानी जाती है, सबसे पुराना कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो हम यूज करते हैं, दैट इज स्टोन्स. इट मीन्स एंशियंट मटेरियल. इट इज द एंशियंट मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एज ए इंजीनियरिंग मटेरियल. दीज आर यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्ट्स. Different temples have been constructed with the use of stones. For example, the Taj in Agra. The Taj in Agra. In Delhi, there is a number of structures. There is a number of buildings which have been constructed through the use of stones. First, Red Fort, लाल किला जिसे आप बोलते हैं. लाल किला बनाने के लिए हमने जो है स्टोन्स को यूज किया है. पार्लियामेंट हाउस इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू द यूज ऑफ द स्टोन्स. राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द बिल्डिंग्स, वेरियस बिल्डिंग्स व्हिच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड विद द यूज ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोन्स. हम इसको बाद में पढ़ेंगे कि कहां पर कौन सी बिल्डिंग में किस टाइप का स्टोन हमने यूज किया है. Nowadays, it means now we have modified this stone. Although stone can be used in its natural form or in modified form, दोनों फॉर्म में यूज हो सकता है. When we have to use nowadays in the natural form or as modified form, then it is to be known as material of construction or material of our intended purpose or our use. Today, for the formation of concrete, यानी कंक्रीट बनाने के लिए आज की डेट में स्टोन इज टर्म्ड एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल. बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम इसको बोलते हैं. और टुडे मीन्स आज की डेट में कंक्रीट से सब कुछ बन रहा है. हर बिल्डिंग में हम कंक्रीट यूज करते हैं. तो कंक्रीट के लिए भी जो स्टोन्स हैं, दे आर द बेसिक मटेरियल. और हम उन स्टोन्स को नेचुरल फॉर्म या उनकी मॉडिफाइड फॉर्म में एज ए बिल्डिंग मटेरियल, एज ए बिल्डिंग स्टोन्स यूज करते हैं. When natural material of construction
इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक, यानी ये जो क्रस्ट था यहाँ पर जो रॉक्स अवेलेबल हैं, जब ये मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन इस रॉक से हम डायरेक्ट लेते हैं, देन इट इज टू बी नोन एज स्टोन, एंड व्हेन दीज स्टोन्स आर टू बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स, then they are to be known as building stones. इसका मीनिंग क्या है कि जब हम नेचुरल मटेरियल यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए और वो हमें रॉक से मिले, यानी अर्थ क्रस्ट से मिल रहे हैं या फिर डाउनवर्ड इन द अर्थ स्ट्रक्चर, तब उसको हमने स्टोन बोला। और जब भी इस स्टोन को हमने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू और इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए यूज किया, देन दे आर टू बी नोन एज द इंजीनियरिंग मटेरियल सच एज स्टोन्स, या इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स के लिए जब हम उसको यूज करते हैं, देन इट इज टू बी नोन एज बिल्डिंग स्टोन्स, then it is to be known as building stones. Now we have to study about the various requirements of a good building stone. It means कि हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमारा जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होगा, जो हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर होगा, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर और जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द स्टोन्स, बट बिफोर द यूज ऑफ एनी टाइप ऑफ स्टोन, बिफोर डिसाइडिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोन्स अवेलेबल इन द मार्केट विच इज टू बी यूज, यानी कौन सा हमें यूज करना है, उसके लिए certain requirements are there which is to be followed or which is to be taken care of, जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम उस स्टोन को एज ए बिल्डिंग मटेरियल यूज करें तो वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी। द फर्स्ट वन is crushing strength. Crushing strength means, पहली रिक्वायरमेंट है क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ का सबसे पहले हम देख लें कि क्या होगा, देन वी आर गोइंग थ्रू द स्टडी। whenever we have a material or sample, we are going for the forces opposite to each other on this material. This is in downward direction A, this is in upward direction B. It means कि हमारा पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, पॉइंट A और B के बीच में हमने स्टोन्स को रखा। क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात मैं कर रहा हूं, ए को डाउनवर्ड डायरेक्शन दी, बी को अपवर्ड डायरेक्शन दी, इट मींस दे आर अपोजिंग ईच अदर। दिस टाइप ऑफ फोर्सेस आर टू बी नोन एज कंप्रेसिव फोर्सेस, एंड द स्ट्रेसेस डेवलप्ड थ्रू दीज टाइप ऑफ फोर्सेस इज टू बी नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। और जब इस टाइप से हम उसको कंप्रेस करते हैं, देन इट इज टू बी नोन एज क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो इस केस में या कोई भी स्टोन जब आप उसको यूज करना चाहें एज ए बिल्डिंग मटेरियल, उसकी जो स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है दैट इज 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 100 Newton per millimeter square when loading of the structure is there, means withstand the load of the superstructure.
This is the primary requirement in case of crushing strength. Then second is appearance. Appearance में दिखता कैसा है, स्टोन देखने में कैसा लग रहा है. फर्स्ट वी ऑलवेज वांट, हम हमेशा चाहते हैं कि उसकी अपीयरेंस जो है, स्टोन की कोई भी अपीयरेंस है, वो यूनिफॉर्म हो, उसका कलर यूनिफॉर्म रहे. द अपीयरेंस शुड बी फ्री फ्रॉम क्ले होल्स, यानी उसमें कहीं भी कोई भी मिट्टी के कण नहीं आने चाहिए अपीयरेंस में. सेकेंडली, यूनिफॉर्म कलर तो है, आज आपने यूज कर लिया, you are using the building stones or the stones as a building structure or the formation of the building. आज की डेट में तो उसका कलर अच्छा है, बट वी ऑलवेज वांट कि विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम द कलर शुड नेवर फेड, कलर फेड नहीं होना चाहिए. देन नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी मीन्स कि जिस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने ये स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपने जो बिल्डिंग स्टोन यूज किया, दैट शुड रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ वेदरिंग एजेंसीज. वेदरिंग एजेंसी मीन्स विंड इफेक्ट, रेन इफेक्ट, हीट एंड कोल्ड. बार बार टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. सनलाइट, that is also affecting. Then we are using the durability, or in case of durability, the stone must have to resist the effect of weathering agencies. It means जब उसमें चेंज हो रहा है, विंड या रेन हो रही है या हीट और कोल्ड हो रहा है, उसके साथ उसकी यूनिफॉर्मिटी इन अपीयरेंस बनी रहे, उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ में कोई दिक्कत ना आए. इट मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज दैट शुड रिमेन सेम. देन नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस टू एबर्जन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबर्जन फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद हमें वो चीज देखनी है कि ये प्रॉपर्टी क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द एबर्जन. व्हाट डू यू मीन बाय एबर्जन. एबर्जन एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जो है वो मानी जाती है स्टोन्स के केस में. क्या करते हैं, वेन एवर स्टोन्स आर यूज इन सच ए केस, सच एज इन, मैं इसको रोड के एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं, इस तरीके से दीज, अब ये मैंने छोटे छोटे आपको करके बताए हैं, एनलार्ज कर रहा हूं मैं इनको. दिस इज वन स्टोन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और इनके बीच में फिर और फाइनर मटेरियल्स है, वो भी स्टोन्स के ही हैं, जिसको आप सैंड बोलते हैं. ठीक है, वो आएगा. whenever जब भी इनके ऊपर आप फोर्सेस अप्लाई करते हैं, तो ये क्या करते हैं, दे स्ट्रक टू ईच अदर एज द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन. ये इनके जहां इनका मिलान होता है, वहां इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां पर एक दूसरे से टकराते हैं. और जैसे ये स्टोन एक दूसरे से यहां पर जैसे ही टकराएंगे, तो इनका जो ऊपर का सरफेस है वो पाउडर फॉर्म में चेंज होता है, वियर एंड टियर होता है. जैसे रोड पे गाड़ी चल रही है, गाड़ी चली रोड पे, इस गाड़ी ने निकल गई, टायर निकल गया, लेकिन उसमें वाइब्रेशंस होंगी, और वो वाइब्रेशंस इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जाएंगी, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जाकर के वियर एंड टियर होगा, और ये पाउडर फॉर्म में चेंज होगा. अब ये जो पाउडर फॉर्म में चेंज होने वाला फिनोमिना है, दिस इज टू बी नोन एज एबर्जन इन केस ऑफ द स्टोन्स. इट मींस वियर एंड टियर इन केस ऑफ द
stones. It means the stones which is to be used for the structures, और the stone जिसको हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, रोड में यूज कर रहे हैं, हाईवेज में यूज कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स में यूज कर रहे हैं, they should have the high resistance against abrasion. ये हमें याद रखना पड़ेगा, यानी उनकी wear and tear should always be low. Next is texture. Requirement of good building stone. Texture, fine grained or compact texture is required. Fine grained means छोटे छोटे जो है वो उसके पार्टिकल से मिलके बना होता है, क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स हम उसको बोलते हैं. Then it is to be known as texture. This should be always compacted in nature. Workability. This is the most effective requirement for a stone to be used as a building material. Workability, easily and economically dressed. It means workability means workability means to be able to work with, to be able to work with, यानी आपके स्टोन का साइज, weight, that should be of such enough, वो इतना होना चाहिए कि हम उससे easily हैंडल कर सकें, उसे easily उठा सकें. Then we can place it, जिस जगह पर हमें उसकी जरूरत है वहां हम उसे प्लेस कर सकें. That is to be known as workability of that particular type of stone. That should be in an easy manner. Economically dressed means कि उसके शेप एंड साइज इस तरीके से यूज करें कि विद इन द मिनिमम नंबर ऑफ स्टोन्स मैक्सिमम एरिया कैन बी कवर्ड. That is economical use. The next is seasoning. Seasoning means the moisture content is always in case of every building material. So in case of stones, the presence of moisture makes the stone as soft, but we do not want the stone to be soft. If the moisture content is present in the stones will be decayed when they used. यानी वो धीरे धीरे डिके होंगे, वो सॉफ्ट हो जाएंगे. इसलिए उनकी सीजनिंग भी जरूरी है. सीजनिंग मीन्स हम उसको रॉक से निकाल करके, जहां से हम जिस भी रॉक से हमने स्टोन्स को जो है बिल्डिंग मटेरियल एज ए बिल्डिंग मटेरियल यूज करने के लिए निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया है, उसको थोड़े दिन के लिए हम या कुछ टाइम के लिए नेचुरल जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस में रख देते हैं, और उन नेचुरल कंडीशंस में जो भी मॉइस्चर और एनी टाइप ऑफ अदर फिनोमिना जो भी होगा वो सीजनड हो जाएगा आपका मटेरियल. दैट्स व्हाई इट इज टू बी नोन एज द पॉइंट ऑफ सीजनिंग. पोरोसिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू कम विद द पॉइंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ porosity. Porosity means porous. पोरस का मीनिंग है कि कोई ऐसा मटेरियल या मेम्ब्रेन जिसके बीच में से जो वाटर है वो सीप कर जाए, यानी ड्रेन हो जाए. जितना ज्यादा ड्रेन होगा उतना ज्यादा
पोरस होगा। अगर मटेरियल वाटर ड्रेन नहीं हो रहा है या इनफिल्टर नहीं हो रहा है, देन वो मटेरियल इम्परवियस होगा, इम्परवियस मटेरियल। इट मीन्स हम कभी नहीं चाहते, वी नेवर वांट, कि हमने जो अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, ये मैंने अपना रूम बनाया है, अपना घर बनाया है, इसके फर्श बनाने के लिए हमने ये जो स्टोन यूज किया है, हम कभी नहीं चाहते कि इसमें अगर पानी गिर जाए तो वो उस स्टोन के बीच में से पार होकर के नीचे जमीन में जाए। नो, वी ऑलवेज ड्रेन इट ऑफ, वो ड्रेनेज की तरफ जाए। तो पोरोसिटी एक ऐसा पॉइंट है या ऐसी रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग स्टोन्स की कि पोरोसिटी शुड ऑलवेज बी लेस देन 5% ऑफ वाटर और should not be greater than 5%. If it increases up to, अगर पोरोसिटी 10% या उससे ज्यादा हो जाती है किसी भी टाइप के स्टोन में, then we directly reject it, हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, and it should be, और उसको रिजेक्ट कर भी देना चाहिए। Then specific gravity should be 2.7 or more than that. Now at last, resistant to fire means, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर हमने अपनी बिल्डिंग को बनाने के लिए, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कोई स्टोन यूज किया, अब मिसहैपनिंग हो गई हमारी बिल्डिंग में, या हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आग लग गई, फायर, इट इज फायर्ड नाउ बाय नेचुरल, कुछ भी हुआ बिल्डिंग में, किन्हीं भी कारणों से आग लगी, लेकिन बिल्डिंग को आग लगी। इसको बनाने में हमने पत्थर को यूज किया है, या हमने जो है जो से वॉल्स भी हमारी अगर हमने स्टोन की बनाई है, या हमने क्लैडिंग की है, दीवारों पे हम वर्टिकल पत्थर जो लगा देते हैं, स्टोन्स क्लैडिंग बोलते हैं उसको, वो लगा देते। जब भी फायर होगी, यानी इस बिल्डिंग में आग लगी है, तो इसका टेम्परेचर राइज होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा, इंक्रीज होगा। और जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो हर मटेरियल का, each and every material in the universe have a certain temperature limits, जहां तक वो अपनी नेचुरल स्टेट है वहां तक स्टैंड करेगा। अगर वो टेम्परेचर उस मटेरियल को उससे ज्यादा दे दिया जाए, तब वो मटेरियल मोल्टन स्टेट में आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो भी स्टोन हमने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज किया है, आग लगने की स्थिति में मैक्सिमम टेम्परेचर को बियर कर सके। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर, आग लगी, टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया बिल्डिंग में और हमारा पत्थर पिघल गया, उससे क्या होगा, पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, गिर जाएगा। इट मीन्स वी ऑलवेज वांट, हम जो ईंट यूज कर रहे हैं, आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि उसके टेम्परेचर जो है वो कितना होगा। किलन टेम्परेचर भी हम अभी पढ़ेंगे कि हमने जब ईंट पकाई है, भट्ठे में ईंट पका रहे हैं, उसको कितने टेम्परेचर पे हमें लेकर के जाना, मैं आपको वही बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं आपको मैं। अब देखिए, अगर हम स्टोन यूज कर रहे हैं तो हमें उसका रेजिस्टेंस तो चाहिए अगेंस्ट फायर। पता चला 200 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर हुआ आग लगने के कारण, और पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। और कोलैप्स होने का कारण बाद में इन्वेस्टिगेट हुआ, क्या पता चला कि आपने जो पत्थर लगाया था वो तो स्टैंड ही नहीं कर पाया। दैट्स व्हाई द गुड बिल्डिंग स्टोन मस्ट हैव द रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर। थैंक यू। नाउ यू आर रिक्वेस्टेड, आपको ये मैं बता रहा हूं कि इट इज ऑन द बिहाफ ऑफ HSBTE पंचकुला। ये जो लेक्चर है ये आपको YouTube चैनल पे पंचकुला की वेबसाइट पे मिलेगा, HSBT।
or as well as on my self channel also. You can subscribe it, you can like it, और आपकी अगर कोई queries हैं you can inbox me. Thank you.